astrological day to all of you. And here again, a new week starts. So, as you know, that we have a Monday idea to discuss now in the Indian Express. What we have is the five eyes fracture. Eyes में fracture नहीं. Five eyes. If you have been reading the last 2 days, ठीक है, last 2-3 days वैसे भी एक festive season था. तो हो सकता है तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हो, लेकिन पढ़ना चाहिए. दैट इज द पॉइंट. ठीक है, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट यू टेक आउट टाइम टू रीड 3-4 आर्टिकल्स पर डे. नो वेदर इट इज अ फेस्टिव सीजन और इट इज योर एग्जाम और वट एवर इट इज. फ्रैक्चर का मीनिंग हो जाता है कहीं पे कोई क्रैक हो जाता है. ये आम बात है, बिल्कुल ये सबको पता होगा फ्रैक्चर क्या है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये रूट वर्ड आ जाता है फ्रैक, विच शोज division, which shows something that is breaking, which shows that there is a crack somewhere. Now where is the crack is in the five eyes. So you can understand from this also that this is the name of some or the other group. और यहाँ से जो ये दिया है इसने न्यूज़पेपर में, जो राजा राजा मोहन, इनका यही आया था न्यूज़पेपर में. दिस इज अ पर्सन एंड व्हाट ही इज रिटन. दिस फोटो इज फ्रॉम द Reuters, right? But then let us see what is happening, and it is something to do with Trump. और बाकी पूरी दुनिया लगी हुई है ये समझने के लिए कि ये ट्रम्प जी कर क्या रहे हैं आखिर. चलो, it is a lengthy article, so I'll be taking the main ideas as well as the vocabulary along with it, right? तो अभी समझते हैं कि एक लेंदी आर्टिकल को किस तरीके से समझना है. और क्योंकि ये मंडे आइडिया है, तो पूरा एक आर्टिकल कैसे समझेंगे या कैसे हमें दिमाग में रखना है उसे, दैट इज व्हाट यू विल बी लर्निंग हियर, राइट? So, as top intelligence officials from several friendly nations, including the US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard, gather in Delhi this week for annual consultations, there is a growing political buzz over the future of the Five Eyes. So, they are meeting in Delhi this week. Fine. There's a political buzz over the future of the Five Eyes. The Five Eyes organization जो है, वो आगे क्या होगा उस ग्रुप का, इसके ऊपर एक उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या रहेगा, उसका पॉलिटिकल एंगल क्या रहेगा. तो ये सारी बातचीत, ये सारा कन्वर्सेशन चल रहा था यहाँ पे. स्पेकुलेशंस, मेजरली कन्वर्सेशन इतनी नहीं होगी जितनी स्पेकुलेशंस होंगी कि आखिर इसका होगा क्या. The world's most powerful intelligence alliance. So this Five Eyes is what? The most powerful intelligence alliance. Formed during World War II, the Five Eyes, comprising Australia, Canada, New Zealand, UK, and the US, now faces an unprecedented internal crisis. ठीक है, ये एक मेन पॉइंट हो जाती है कि ये जो इंटरनल क्राइसिस है, ठीक है, ऐसा ऐसा क्राइसिस, ऐसा मतभेद जिसे कहते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसा आज से पहले कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस अलायंस में नहीं हुआ है. सो इट इज अनप्रेसिडेंटेड. नाउ फ्रॉम हियर यू गेट टू थिंग्स. वन, द नेम ऑफ दिस अलायंस. सेकंड, इट कंप्राइजेस ऑफ विच कंट्रीज. तो जिसने आज से पहले कभी फाइव आईज के बारे में नहीं सुना होगा, तो उसके लिए तो जीके प्रिपरेशन हो जाती है. एंड दिस इज हाउ यू नीड टू नोट डाउन द थिंग्स, जो कि कभी भी कैसे भी पूछा जाता है. बिकॉज the GK also would ask you, the GK section would also ask you something that is going on in this hot year, all the whole year, entire year. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे इस अलायंस में, ये आ जाती है बात. Now this crisis is triggered by the profound shifts in the US policy in Donald Trump's second term, right? So this is the first point, that there is a shift in the policy of US regarding the Five Eyes. और ऐसा शिफ्ट हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, तो पहले कभी हुआ नहीं था. ये चेंज है. तो ये एक प्रोफाउंड शिफ्ट हुआ है जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, और इसीलिए ये एक क्राइसिस बन के आया है. क्यों? क्योंकि यूएस की पॉलिसी चेंज हो रही है. Now, it is not just the idea of the collective West that is under fire in Washington. Trump's radical reorientation of US foreign policy, seeking rapprochement with Russia, pushing for a ceasefire in Ukraine, weakening the EU and NATO, and dismantling the post war US Europe strategic consensus. This has shaken long standing assumptions about the international order. Now, see, I marked this only why? Because this is what he is saying.
तो इनके ये पॉइंट्स 1 2 3 4, रशिया से दोस्ती करो, यूक्रेन का सीज फायर हो, ठीक है, ईयू और नाटो इस तरीके से वीकेंड हो जाएंगे, और डिसमेंटलिंग ऑफ द पोस्ट वॉर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक कंसेंसस, ये डिसमेंटल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी, और ये सब कब किया है? ट्रंप ने अपने सेकंड टर्म में किया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। लेकिन इससे हुआ क्या है, तो ये उसका इम्पैक्ट हो जाता है। दिस हैज शेकन लॉन्ग स्टैंडिंग assumptions about the international order. So this becomes the point. What has happened? Now, tensions between Washington and its European allies are not new, but the intensity today is unmatched. राइट, तो अगर किसी को अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग नहीं आता है, या इंटेंसिटी के हिसाब से अनमैच्ड, मतलब इससे पहले ऐसे कभी हुआ नहीं है, इतनी इंटेंसिटी अग्रेसिवनेस में आ गई है। So the Anglo-American partnership has been one of world's most enduring alliances since the middle of the 20th century. तो Anglo-American का मतलब होता है यूके एंड यूएस, ठीक है। इनका जो अलायंस है ये हमेशा से, मतलब 20th सेंचुरी से ही ये साथ में है। लेकिन सेंट्रल फीचर ऑफ दिस अलायंस इज द इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट दैट वॉशिंगटन एंड लंदन साइंड इन 1946, that built on the bilateral wartime cooperation in intercepting and decoding enemy communications। ये उसका काम था, that was the task of फाइव आईज। वो बनी क्यों थी? नजर रखने के लिए, उनके जो मैसेजेस हैं उन्हें डिकोड करने के लिए, जो उनके दुश्मन कंट्रीज हैं उनसे। लेकिन अब आपस में ही दुश्मनी होती जा रही है धीरे धीरे, दैट इज द पॉइंट। So the bilateral agreement was expanded to cover the rest of the Anglosphere and focused on collecting and analyzing signals intelligence of common interest. Canada joined in 1948, followed by Australia and New Zealand in 1956. तो ये हमारे पास बन के कितने पहले यूके और यूएस था, उसके बाद ये तीनों भी आ गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। Anglosphere refers to the English-speaking world, once part of the British Empire, which shares common traditions of politics, law, and culture. ये एंग्लोस्फियर था, कॉमन ट्रेडिशंस थी, तो वो एक गुट बन गए, एक ग्रुप बन गए। During the Cold War, the Five Eyes played a critical role in monitoring Soviet and Warsaw Pact communication. So it was okay, fine. This was again the task of the Five Eyes. After 9/11, the Five Eyes expanded its scope to cover counter-terrorism and cyber security. अभी तक तो ये सिर्फ वॉर टाइम प्रॉब्लम्स और डिकोडिंग की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब वो टेररिज्म के साथ भी हो गया, मतलब काउंटर टेररिज्म का काम हो गया। In the past decade, the alliance turned its focus towards China, warning against the risk posed by companies like Huawei. Right? So now the eyes are on China also. All this is only extension of the work that the Five Eyes was supposed to do. कब उसने क्या क्या काम किया है, और इन सबने मिलके किया है, तो वो वही ऑथर का कहना है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो, कि मतलब एक बैकग्राउंड बिल्डिंग जैसे है ये पूरा। In 2018, the Five Eyes intelligence chiefs publicly cautioned that Huawei's involvement in 5G networks poses security risk, क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे थे, तो 2018 में इन्होंने ये एक कॉशन दे दिया। Now this is leading to a coordinated push to exclude the company from the Western infrastructure, persuade friendly nations in the non-West to keep Huawei out. तो ये अगेन इनका एक काम हो गया, एक टास्क हुआ। In recent years, the Five Eyes have stepped up the engagement with key partners in Asia, especially Japan. So it is telling us about how this alliance was born, and who all then contributed, and who all actually connected to this alliance. अभी तक हमने देखा था यूके है, यूएस है, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फिर धीरे धीरे इन्होंने इनका काम बढ़ता गया था, फिर वो साइबर सिक्योरिटी पे और काउंटर टेररिज्म पे आ गए। पहले सिर्फ वॉर टाइम का उनको हेल्प करना था, इंटेलिजेंस एक्सचेंज वाली बात थी। अब धीरे धीरे उनका फोकस फिर चाइना पे होने लगा, क्योंकि वहां पे साइबर सिक्योरिटी का काम था। राइट, अगर वो प्रॉब्लम्स उन्हें समझ में आ गई, तो उन्होंने अपनी बातें इसे की पार्टनर्स इन एशिया, मतलब जापान से उन्होंने अपना रिलेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। अब बियॉन्ड इंटेलिजेंस, द एंग्लोस्फीयर एक्सपैंडेड इट्स मिलिट्री कोलैबोरेशन। ठीक है, दिस इज द सेकंड टास्क। बियॉन्ड इंटेलिजेंस वाला इंटेलिजेंस तो है ही सी, क्योंकि बनी इसीलिए थी अलायंस। अब उसके बाद धीरे धीरे साइबर सिक्योरिटी और इसकी बात हो गई।
इसका एक और काम रहा उसका डिफेंस कोलैबोरेशन, particularly in the Indo-Pacific. Creation of AUKUS, wherein the US and UK are assisting Australia in developing a nuclear-powered submarines, heralded a new purpose for the Anglo-American alliance. So, a new purpose for the Anglo-American alliance would mean इसके पहले जो ऑथर ने दिया है वो सब उसका टास्क उसका पर्पस था कि अलायंस बना क्यों है। ठीक है, अब ये डिफेंस कोलैबोरेशन में भी काम आ रहा है या उसमें भी इसने एक कदम आगे बढ़ाया है। सो ऑकस की बात उन्होंने कर ली जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। Heralded means welcomed or indicated, you can say. So discussions have also taken place about integrating Canada and New Zealand under the so-called Pillar 2 of the AUKUS framework. तो कनाडा एंड न्यूजीलैंड उनका हिस्सा तो है इसी अलायंस का, अब इनका ऑकस में भी अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को लिया था, अब कनाडा और न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड करेंगे। दैट वाज इट। डिस्पाइट ओकेजनल रिफ्ट्स, रिफ्ट्स यानी छोटे मोटे से झगड़े, या ओकेजनल था, हमेशा होता ही है। सच एज न्यूजीलैंड पास डाइवर्जेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, इंटरनल कोहेजन रिमेन्ड इंटैक्ट। तो पास डाइवर्जेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स का मतलब न्यूजीलैंड थोड़ा सा दूर हट गई थी। डाइवर्जेंट रेस कैसी होती है, एक पॉइंट से दूर चले जाना, ये डाइवर्जेंट होता है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जाना, दैट इज डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट हो जाता है जब अलग अलग जगह से एक पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये कॉन्वर्ज होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट कैसे थी, न्यूजीलैंड कहीं अपने पार्टनर से थोड़ी सी अलग हो गई थी लेकिन कट नहीं किया था, इट डिड नॉट सीवर द टाइज देयर, राइट। सो इंटरनल कोहेजन रिमेन्ड इंटैक्ट, कोहेजन यानी मिलके रहना, कनेक्टेड रहना, वो सही था, अभी भी अलायंस अलायंस ही थी। This time, however, the primary source of disruption is not a smaller member but the US itself. So this becomes again another important point which says कि देखो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं हमेशा, और छोटे मोटे झगड़े हुए भी हैं, लेकिन फिर भी इंटरनली ये अलायंस जो है ये स्ट्रांग है, पुख्ता रहा है ये। अब की बार प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ से न्यूजीलैंड का जब एग्जाम्पल दिया तो न्यूजीलैंड थोड़ा सा हट गई, राइट। पर यहाँ पे तो यूएस हट रहे हो, यूएस का हटना मीन्स लाइन शेयर जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा सा हिस्सा, तो वो हट गया। अब अगर ये हट जाता है तो देन द कंप्लीट अलायंस की स्थिति जो है ना वो डामाडोल हो जाएगी, राइट। इट विल बी ऑन शेकी ग्राउंड्स यू कैन से। So disruption is the disturbance. So it is not a smaller member like New Zealand, but then it is the US itself which is trying to break away now. So Trump's aggressive trade war against Canada, a long-time trading partner and a pillar of the Anglosphere, has stunned observers around the world. Stunned का मतलब हमने recently किया भी था ये, ठीक है। तो स्टनिंग परफॉर्मेंस होता है ना, मंत्रमुग्ध होके मिसमराइज होके एकदम देखना, तो वंडर हो जाता है एक, और एक सरप्राइज हो जाता है, राइट। So stunned with that performance means I did not expect this to happen and it happened, so I was stunned. This is how you can use the word. So there is a surprise factor and there is wonder also. ऐसा कैसा हो सकता है ये, अच्छा ऐसा हुआ भी, ये surprise, तो एक surprise plus wonder is stunned. So now they did not expect US to go against all the countries, no, then in this alliance also. So this is aggressive trade war, right, which US has come across against Canada. ये सब लोगों को अचंभे में डाल देती है कि आखिर यूएस कनाडा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो एक पिलर है। नाउ हिज सजेशन दैट कनाडा शुड बिकम द 51st स्टेट, मतलब कनाडा को भी यूएस में ऐड कर लो, एंड हिज क्लेम दैट द बॉर्डर इज आर्बिट्रेरी वाज सीन एज अनप्रेसिडेंटेड रेफरेंस टू द अलायंस। ठीक है, मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हो कनाडा एक अलग कंट्री है, अब आप बोलते हो कनाडा को एक स्टेट बना के अपने यूएस में इंक्लूड कर दो, तो फिर like nobody would expect this, nobody has expected this, but then this has happened, so we all wonder कि what is in the mind of Trump, वो चाहते क्या है। ऐसा जब हम सोचते हैं ना तो वो स्टंड हो जाता है, अच्छा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो आर्बिट्ररी यानी अपनी मर्जी, ऑटोनॉमस, मतलब अपनी मर्जी, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, वो आर्बिट्ररी डिसीजंस हो जाते हैं। Even more provocative was his bid to annex Greenland, a territory tied to Denmark. अब ग्रीनलैंड देखो, ये है कनाडा, यहाँ पे है यूएस, ये कनाडा, अब कनाडा से यहाँ पे ग्रीनलैंड आ जाएगा, ये छोटा सा आइसलैंड है, उन्हें आइसलैंड तो नहीं चाहिए, उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड जो कि हॉलैंड के साथ आ जाता है, डेनमार्क के साथ आ जाता है इस तरफ से, यहाँ से, राइट। But then a territory tied to Denmark and one of the closest allies of the Anglo-American powers in
यूरोप, यूरोप का अगर आप पूरा बराबर मैच देखते हो तो ये वाला नहीं, यूरोप का बराबर मैप देखोगे तो यू विल फाइंड द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देयर, यू विल फाइंड यूके एंड देन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे एंड स्वीडन एंड ऑल दैट, एंड देन यू विल फाइंड द हॉलैंड आल्सो। ठीक है, तो वहां पे मैंने वो वाला मैप नहीं डाला है इधर, but then you can understand Greenland with respect to Canada. ठीक है, therefore I put this map then. You'll find Denmark there. Now, beyond economic and territorial challenges to its long-standing partners in the Anglosphere, the Trump administration's rhetoric towards Britain has been particularly hostile. Again, उन्होंने word hostile use किया है क्योंकि उन्होंने word aggressive भी use किया है। तो hostility का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति एक द्वेष भावना रखना, enmity रखना, झगड़े की भावना रखना, वो हमेशा, so that is like being hostile. So now रेटोरिक इज समथिंग दैट इज पर्सुएसिव, वो बार बार यही बात कर रहे हैं सर। एक रेटोरिक होता है, नरेटिव जो रहता है ना कि ठीक है हमारे पक्ष, हमारा ओपिनियन यही है, हम यही बोलेंगे, बार बार यही बोलते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट इज पर्सुएसिव, दैट इज समथिंग दैट इज इनएसेंशियल आल्सो, right? So at a Washington gathering of global conservative parties last summer, then Senator J.D. Vance described Britain as the first truly Islamist country to get a nuclear weapon. अब उन्होंने यूके को इस तरीके से डिस्क्राइब किया, किसने? वाइस सीनेटर थे वैंस ने। डिस्क्राइब ब्रिटेन एज अ फर्स्ट ट्रूली इस्लामिक, अब उन्होंने उनको इस्लामिक कंट्री क्यों बोला, तो कोई तो इंडिकेशन होगा वहां पे। तो ये पूरा रीजनिंग है कि मतलब व्हाई इज यूएस गोइंग अगेंस्ट दीज कंट्रीज एंड दिस अलायंस आल्सो। He went on to say maybe it's Iran, maybe Pakistan kind of counts, and then we sort of decided maybe it's actually the UK since Labour just took over. ठीक है, सो द फर्स्ट इस्लामिस्ट कंट्री मे बी ईरान, तो ठीक है हो सकता है ईरान, तो हो सकता है पाकिस्तान भी हो, मतलब वो इस तरीके काइंड ऑफ काउंट्स, मतलब हाँ ठीक है ये भी हो सकता है। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि यूके है फर्स्ट इस्लामिस्ट कंट्री। ऐसे क्यों? क्योंकि लेबर अब जीत गया इधर। तो नाउ व्हेन यू से द लेबर जस्ट टुक ओवर, so what you can infer from this is there is something to do with the people here in the Labour Party and the country being termed as a truly Islamist country. So there is some connection between the two. This is what you can infer. That Islamists are gaining dominance in some European countries with growing Muslim minorities is becoming a common and right-wing political discourse in the US. तो right wing political discourse मतलब जब भी right wing वालों की बातें होती हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, आपस में बात हो या कहीं पे भी कोई स्पीच वगैरह होती है, तो देन व्हाट इज बीइंग व्हाट इज यूज्ड एज अ मेजर टॉपिक हियर नाउ, और टॉपिक ऑफ डिस्कशन अब क्या है? द इंक्रीजिंग Islam population there in these European countries, right? So there's a fear of Muslim minorities that is growing in these countries. So now you can understand, according to the author also, that US is trying to give a reasoning for why he is acting in such a manner. Now, at the Munich Security Conference last month, Vance attacked Britain's woke politics, alleging censorship of right-wing views and accusing its leadership of bias towards minority and liberal extremists. देखो, अब अगर हमें वो पॉलिटिक्स नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये तो हमें समझ में आ जाता है ना। इफ द पर्सन इज अक्यूजिंग यूके ऑफ समथिंग, so that something is something that the UK people are taking that step which is hurting the right wing people, right? So liberal extremist और minorities के तरफ bias होना, ठीक है, और liberal extremist, तो वोक पॉलिटिक्स को हम कहेंगे जो कि सेंसरशिप करें, तो राइट विंग वालों के खिलाफ जाना और डिस्क्रिमिनेशन करना, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाली बात हो या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, ये बात करना, दैट इज वोक पॉलिटिक्स। ठीक है, वोक को वेक से रिलेट कर लो तो समझ में आ जाएगा कि जैसे ना आंखें खुल गई हैं इनकी कि अब हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो डिस्क्रिमिनेशन के प्रति आंखें खुल जाना इनकी, so this they are coming up with that discrimination, so that is woke politics, so they are going against the right wing and towards the minorities, right? So this is what was said last month. Now Elon Musk, a vocal Trump ally, has further fueled the tensions.
He accused British Prime Minister Keir Starmer of failing to act against child exploitation during his tenure as Director of Public Prosecutions. Musk also called for the resignation of labor officials over the handling of grooming gang scandals. Right? तो जितने भी gang scandals थे, लेबर वाले जितने लीडर्स थे, उनका रेजिग्नेशन उन्होंने मांगा था. तो now this is also establishing that the people or the government in the UK is now more in the labor and towards the Islamist uh, point of views rather than towards the liberal point of views. Okay. So this all comes up as a reasoning of why US is behaving in such a manner. Now, in a provocative attack on the Labour government, Musk launched a poll on his platform X asking whether the US should liberate Britain from its tyrannical government. Many saw this as a direct attack on the Labour Party and its policies. इस देखो अभी यहाँ से वापस से हम कुछ इन्फर कर सकते हैं. जब इन्होंने पूछा कि ठीक है हम क्या ब्रिटेन को आजादी दिलाएं उनके टिरेनिकल गवर्नमेंट से, तो टिरेनिकल गवर्नमेंट कौन सी हो गई? लेबर पार्टी हो गई और उसकी पॉलिसीज जो कि राइट और लिबरल्स के खिलाफ होती जा रही है. तो ये प्रॉब्लम आगे क्रिएट करेगी यूएस के लिए भी. therefore यूएस इज बिकमिंग सो लाइक उनका ध्यान पूरा जा रहा है इधर और तभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन जैसे लेने की कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें द पॉइंट हियर इज कि हमें एक मैटर को पूरी तरीके से अच्छे से समझना चाहिए. उसके काफी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. इट इज नॉट व्हाट ओनली द पीपल से. Now see this passage, why do I take the Monday idea? So at least you can understand कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उसके सारे एस्पेक्ट्स समझ में आने लगते हैं. Now there is speculation again, people are thinking on this in Washington that some of Trump's aides are suggesting the expulsion of Canada from the Five Eyes given the serious disputes today over trade and border security. ऐसा स्पेकुलेशन है कि वॉशिंगटन ऐसा करेगी, लेकिन वॉशिंगटन ने मना कर दिया. These reports were denied by the White House कि हम कनाडा को निकालेंगे नहीं. ठीक है, कनाडा को निकालेंगे तो फिर यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. कनाडा साथ में रहेगा तो एटलीस्ट आपकी नजर उस पर रहेगी. Meanwhile, the US allies have concerns of their own on the developments of in Washington. The appointments of Tulsi Gabbard as Director of National Intelligence and Kash Patel as FBI Director, ये तो recent था. देखो तुम्हारे पास एक और point मिल गई GK में लिखने के लिए. They have raised alarm among traditional allies. Many in the Five Eyes establishment worry that Trump's erratic approach to intelligence sharing could compromise the security of the Anglosphere in the West. ठीक है, erratic is something that is irregular, sporadic. Now, these allies are only echoing the former leaders of the US intelligence establishment that has been hostile to Trump. तो ये जो इनकी चिंता का विषय है इनके अलाइज का, वो किस पे आया? क्योंकि इन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है. ठीक है. echoing means repeating और sounding the same. ठीक है. सेकंडिंग हो सकता है. सेकंड करना मतलब कि आप किसी ने एक अपना ओपिनियन दिया और आपने उसमें हामी भरी, आपने एग्री किया, तो वो सेकंडिंग हो जाता है. echoing का मतलब होता है यू आर कमिंग अप विद द सेम same opinion which were voiced by the allies, the former leaders of the US intelligence. तो जो कुछ इन लीडर्स ने कहा था ये allies भी वही कह रहे हैं, वैसी ही सही बात कह रहे हैं. राइट. Now, the deep ideological divide between Trump's MAGA movement and the traditional Anglosphere is stark. Stark means एकदम से दिख जाता है, clear contrast दिख जाता है. Now, the American right increasingly views Britain as a failing state dominated by excessive economic regulation and woke politics. Now, this is again the point which the author has reasoned out. कि ठीक है, यूके अभी है कैसा, वोक पॉलिटिक्स है उसमें और एक्सेसिव इकोनॉमिक रेगुलेशन है इस कंट्री में. तो इट इज डोमिनेटेड बाय दिस इकोनॉमिक रेगुलेशन और इट इज अ फेलिंग स्टेट. Now, this resentment extends to what they see as a global liberal establishment, one that includes left liberal politicians in the Anglosphere, Europe, and beyond. ठीक है. Resentment means hatred. तो ये hatred कहाँ तक चलती है?
ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सटेंड्स टू। इट एक्सटेंड्स टू व्हाट दे सी एज अ ग्लोबल लिबरल एस्टैब्लिशमेंट। ये एक लिबरल एस्टैब्लिशमेंट है। अब देखो डैश का मीनिंग ये एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताएंगे तुम्हें, तो क्या है ये एस्टैब्लिशमेंट? इट इज वन दैट इंक्लूड्स द लेफ्ट लिबरल पॉलिटिशियंस। आप अंडरलाइन कर लो, थोड़ा सा और रीडिंग कर लेना इसके बारे में, ठीक है? Europe and beyond. Now, as it hosts the global spokes party, India's own intelligence establishment has an opportunity to hear firsthand from the key participants, assess whether the current crisis in the Five Eyes is a temporary crack or a permanent fracture. अब इंडिया में ये स्पूक्स पार्टी हो रही है। स्पूक्स यानी ऐसे स्पूकी एटमॉस्फेयर, देखो ऐसे डरावना वाला, ठीक है, मिस्टीरियस वाला। तो ये जो है, अभी फर्स्ट लाइन में ही देखा था कि दिल्ली में अभी नेक्स्ट वीक, मतलब इस वीक अभी आने वाले हैं ये, ठीक है? अब यहाँ से क्या होगा, इनको फर्स्ट हैंड सुनने को मिलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कितना बड़ा है, या क्रैक है तो कितना गहरा है। तो क्या ये क्रैक है या फ्रैक्चर है, मतलब आप एक्सरे मशीन समझ लो। जब हम गिर जाते हैं तो एक्सरे होता है फिर, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है, बारीक सा क्रैक है, या पूरा फ्रैक्चर ही हो गई है बोन्स में, राइट? तो ये समझने का मौका मिलेगा इंडिया को। फिर इंडिया क्या करेंगी? इट इज ऑल्सो मोमेंट फॉर दिल्ली टू रिफ्लेक्ट ऑन द लॉन्गर टर्म implications of the crisis and develop options to strengthen its own intelligence diplomacy in a world where the old markers are disappearing. अब देखो ये हो गई, और तो ऐसे पॉइंट की देखो, ये पूरा उसे रीजनिंग दे दिया कि क्या क्या हो रही है, सिचुएशन क्या है इस फाइव आइज में, फ्रैक्चर है, क्रैक है, ये पता करेगी कौन? इंडिया पता कर सकती है। उसके बाद उसके कदम या वट एवर स्टेप्स इट टेक्स, वट एवर मेजर्स इट follows, right, will be dependent on how well India understands the situation or the crisis that the Five Eyes Alliance is facing. अगर उसे अच्छे से परख लिया, अच्छे से समझ लिया कि इनका प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, देन इट कैन टेक सम स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू। So, if I give you the main idea now, Five Eyes Fracture and the Trump Disruption in Western Intelligence, ये टाइटल कर दो, हेडिंग कर दो, एसेंस कर लो, इसका शॉर्ट हो जाएगा। हेडिंग तो फाइव आइज फ्रैक्चर बढ़िया था, ठीक है, और ये हो जाता है एसेंस, व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द passage. Formed during World War II, the alliance now faces an internal crisis triggered by the profound shifts in the US policies. Why this crisis is there? It has been started by the shifts in the US policy. So this is a line from the passage only, right? Then Trump's radical reorientation of US foreign policy has shaken long-standing assumptions about the international order. तो लोगों का ये मानना था कि यूएस है, जब तक सही होती है तो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर जो है बढ़िया सा बरकरार रहेगा। तो अजम्पशंस हैं ये, लेकिन ये अजम्पशंस तो सारे हिल गए, जितने स्पेकुलेशन थी सब डामाडोल हो गए। क्यों? क्योंकि इनका रीओरिएंटेशन हो गया, और रेडिकल का मतलब होता है रूट लेवल। तो बेसिक लेवल पर ही ये चेंज कर लेके आ रहे हैं। ट्रम्प इज चेंजिंग और कमिंग अप विद द रूट change orientation of its foreign policy, and therefore the assumptions whatever were taken, right, they are now coming up with a question mark as they are very much shaken. तो आखिर आगे क्या होगा, इंटरनेशनल ऑर्डर रहेगा नहीं रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि ये क्राइसिस जो है ये सिर्फ एक क्रैक है क्या, इनकी इंटरनल क्रैक रहेगा, या फ्रैक्चर होके तोड़ के ये पूरा अलायंस ही बिखर जाएगा, उस पे इंटरनेशनल ऑर्डर टिका रहेगा, राइट? सो here, for more to read, we have Look to the Sea. Yeah, this is an interesting article talking about the importance of Mauritius in our trade transactions. हमारी business, हमारे exports किस तरीके से चल सकते हैं, हम आगे कैसे पहुंच सकते हैं अगर मॉरिशस को हमने साथ में रखा तो। His place in a free world, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है अबाउट दलाई लामा, राइट? तो अगर ये थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा एक जॉनर, सो आई सजेस्ट दैट यू रीड दिस आल्सो। then should cancer be a notifiable disease, again it is from the Hindu. So थोड़ा सा ये साइंस और मेडिसिन मेडिकल रिलेटेड हो जाएगा, तो अगेन अ डिफरेंट जॉनर।
एंड फेसबुक इनसाइडर्स एक्सपोज, बुक रिव्यू है ये, बिजनेस स्टैंडर्ड में मिलेगा। और बुक का नाम केयरलेस पीपल। ठीक है, ये एक फेसबुक इंसाइडर ने लिखी है, उसने अपना पूरा फेसबुक के बारे में कुछ भी एक्सपोज की है उन्होंने, कई सारी बातें। तो रीड द बुक रिव्यू, क्योंकि बहुत बार बुक रिव्यूज आते हैं। और कहीं ना कहीं किसी एक पेपर में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, पर वो है, आज एक एक्सट्रैक्ट आया है एक नॉवल का, अगर वो मिल जाता है तो वो भी जरूर पढ़ लेना। अदरवाइज इफ यू आर रीडिंग दिस 1, 2, 3 and 4 articles and one that you have already read and discussed now, this will be more than enough for different genres. Okay, so that's all for today, and thank you. Stay logical and stay positive always. See you.